In this class, we will discuss about the arrays in Java. First, we will try to understand why there is a need for arrays. The reason is very simple. If we are having so many variables means suppose you want to record the data or the temperature, today's temperature of every 1 hour. मीन्स आपको एक एक घंटे की ड्यूरेशन में टेम्परेचर को नोट करना है. सपोज आपका 10 AM है, 10 AM पे आपका टेम्परेचर कितना है, सपोज 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड एट 11 AM your temperature is suppose 24 degree centigrade, and so on. You are measuring the temperature round the day for 24 hours. So there will be the 24 entries for measuring the temperature. Now for storing this particular temperature you need a variable. Suppose I create the variable a, put the value 23 inside it. I create another variable b and put the value 24 inside it, and so on. Now the reason is we have to declare so many variables, and when so many variables are scattered around in your program, it is very difficult to assemble all those variables to get the results out of them. Or suppose take a very small example. Suppose you want to save the name of the students in a particular section. Take an example that there is some class 11th A, and in this particular class there are 40 students. Now you want to generate the list, or you want to save the name of all the students which are there in the class. Then again you have to create the multiple variables, like the first student is Ashish, and the second name of the student is Rohit, and the third name of the student is suppose Sita, and so on. So for 40 students you have to create 40 variables. और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम अलग अलग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए वेरिएबल को यूज़ किया, यहाँ पर हमने बी वेरिएबल को यूज़ किया, यहाँ पर सी वेरिएबल्स को यूज़ किया, तो पहला डिमेरिट क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं. ठीक है. और दूसरी बात, अब हमारे पास ये तो है नहीं कि हमारे पास एक ही क्लास होगी. एक स्कूल के अंदर तो बहुत सारी क्लासेज होती हैं, माइट बी 50 टोटल ऑफ 50 क्लासेज इफ दे आर मैनी सेक्शन इन द क्लासेज. तो आपके प्रोग्राम के अंदर इतने सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं. लेकिन हमारे को अब ज़रूरत क्या पड़ती है, इसलिए हमारे को एक ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करा सकें. ठीक है. अब देखिए, मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव कराने का मतलब क्या होता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि आपके पास आपको टेम्परेचर्स नोट करने हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर आपने टेम्परेचर्स नोट करने शुरू किए, भाई मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, या फिर हम केवल मिनिमम टेम्परेचर को या मैक्सिमम टेम्परेचर को लेते हैं. इतनी सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमें सब वैल्यूज़ को सेव कराना है. और अगर हम पूरे महीने की बात करें तो पूरे महीने में तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी. इतने सारे वेरिएबल्स हम कहाँ से डिस्कस करेंगे. तो हमारे को है ना, इसमें एक ऐसा डेटा टाइप, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए. हमारे को क्या चाहिए, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट डू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर. हमारे को एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेव करा सके. जैसे अब हमने कोई वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का हमने ए वेरिएबल लिया. नाउ इट इज़ ओनली पॉसिबल टू सेव अ सिंगल वैल्यू इनटू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. यू कैन नॉट सेव मोर देन वन वैल्यू इन अ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया, देयर आर द सो मैनी वैल्यूज़, so we need so much of variables. I think if we are taking a data for the month, it is required to have 500, 600 or 700 variables. So it is illogical, completely illogical that you are using hundreds or thousands of variables within your program. So the easy solution is to create an array. The main advantage of creating creating an array is that you can save multiple values. You can save multiple values in a single variable. You can save multiple values in a single variable. Now if you want to save the multiple values in a single variable, then you have to create an array. It is very simple and straightforward way to create an array. If but there is only a need to understand the syntax and the behavior of the array. आपको ये दो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी बस. एरेज का बिहेवियर क्या होता है, सिंटैक्स कैसे होता है, और ये काम किस तरह से करता है. ठीक है ना.
इसके अंदर सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एन एरे, सिंटैक्स, पहले हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं कि हम एरे को किस तरह से क्रिएट करते हैं। देखो सिंटैक्स के अंदर हमारे को एक चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर कि एरे केवल सिमिलर डेटा टाइप्स को, सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर डेटा वैल्यूज़ को ही सेव कर सकता है। मतलब अगर जैसे हमने कहा कि हमारे को टेम्परेचर नोट करने हैं सबके, टेम्परेचर अगर डेसिमल में है, जैसे आपको टेम्परेचर इस तरह से आपको क्रिएट करने हैं, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, ये आपकी हो गई डबल वैल्यू। ठीक है, मतलब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया डबल। ठीक है, अगर आपको नेम्स को स्टोर करना है, केवल नेम्स, जैसे हमने कहा मेरे को रोहित नेम सेव करना है, तो हमारी एक रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, जिसको हमने अभी पढ़ानी है, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, इसका आगे जाकर के पूरा वीडियो आएगा एक स्ट्रिंग का। तो आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। या फिर आपको सपोज जैसे टेम्परेचर्स लेते हैं हम, तो टेम्परेचर आपका क्या है, सपोज हमारा सिंपल इंटीजर्स में है, आपके सारे के सारे टेम्परेचर, हमारे को इंटीजर वैल्यू सेव करनी है 23 और फिर 24 और फिर 21, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो हमारे को इसमें है ना वेरिएबल के अंदर बताना पड़ेगा कि हम किस तरह की वैल्यूज़ को सेव करते हैं, तो क्योंकि हम अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही एरे के अंदर सेव नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं ना एरे की, तो एक ही तरह की डाटा टाइप्स को हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। मतलब एरे या तो आप डबल टाइप का बनाओगे, या स्ट्रिंग टाइप का बनाओगे, या फिर आप इंटीजर टाइप का बनाओगे, एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज़ को आप सेव कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि एरे का साइज फिक्स होता है। साइज़ क्या होता है इसका, फिक्स। मतलब आपको पहले से बताना पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेट कि आपको इतनी वैल्यूज़ तक सेव करानी है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, हमारी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, आपको सारे स्टूडेंट्स के नाम सेव कराने हैं, तो आपका वहाँ पर साइज़ क्या हो गया, आपका वहाँ पर साइज़ हो गया 40। आपको एरे का साइज़ बताना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ये साइज़ आपका बढ़ सकता है, तो आप इसको इनिशियली 45 ले लो, सेव आप केवल 40 कराओ, ये 5 जो आपके बचेंगे बैलेंस 5, उनको आप बाद में यूज़ कर लो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार साइज़ डिफाइन कर दिया ना, आप उस साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसको आप क्रिएट टाइम के ऊपर ही आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ योर एरे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सिंटैक्स से। सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल है। सपोज हमारे को इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, किस टाइप का बनाना है, इंटीजर टाइप का वैल्यूज आपको एरे बनाना है जो टेम्परेचर को सेव करेगा, किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म्स में। तो हमने है ना पहले तो यहाँ पर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, ये हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया कि हमारे को किस टाइप का एरे बनाना है, हमारे को यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करना है। अब आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, हमने यहाँ पर लिया टेम्प, हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, इसी तरह से जैसे हम करते हैं। और यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। अब ये देखिए, हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं, हम ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए यूज़ करते हैं कि ये बताने के लिए कि ये जो हमारा वेरिएबल है टेम्प, वो कोई सिंगल वैल्यू वेरिएबल नहीं है, वो दिस वेरिएबल इज अ मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल, मीन्स दिस कैन सेव मोर देन वन वैल्यू। और जो हमारा वेरिएबल मोर देन वन वैल्यू को सेव करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एरे। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। सो दिस पार्ट, अब हमने केवल इतनी लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाद में हमने सेमीकोलन को पुट कर दिया। नाउ दिस इज नोन एज द डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे मीन्स यू हैव डिक्लेयर्ड द एरे। आपने डिक्लेयर तो कर दिया, मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ एरे, लेकिन ये एरे अभी मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर कैसे क्रिएट होगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू, देखो ये हो गया आपका न्यू। न्यू को अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। न्यू इज अ कीवर्ड, अभी तो आप ये समझ लीजिए, न्यू इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी, which is used to allocate the memory for an array, which is used to allocate the memory for an array। अच्छा, अब हमारे को इस न्यू कीवर्ड की देखो ज़रूरत क्या पड़ती है, अभी इस पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे, पहले है ना हम ये वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू न्यू, फिर हम ये डाटा टाइप लिखेंगे इंट। अब हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे साइज ऑफ द एरे,
कि हमारे एरे का साइज़ क्या होगा, मतलब हमारे को इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ को सेव करना है। और यहाँ पर हम केवल कोई इंटीजर वैल्यू ही दे सकते हैं, हम यहाँ पर डेसिमल या फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया सपोज 45 कि इस एरे के अंदर, और यहाँ पर आपको पुट करना है सेमीकोलन, कि इस एरे के अंदर हमारे को कितनी इंटीजर टाइप की, इसके अंदर अब वैल्यू केवल इंटीजर टाइप की ही आएंगी और किसी टाइप की नहीं आएंगी, कि इस एरे के अंदर हमारे को इंटीजर टाइप की कितनी वैल्यूज़ को सेव करना है, हमारे को इसके अंदर इंटीजर टाइप की 45 वैल्यूज़ को सेव करना है। तो अब हम आते हैं न्यू कीवर्ड पे। अब देखो न्यू कीवर्ड का यहाँ पर फ़ायदा क्या है, कैलकुलेशंस मेरे को इसके अंदर परफॉर्म करनी है, इसलिए मैं इसको सिंपल अभी 40 कर देता हूँ, इसको अभी हम सिंपल 40 कर देते हैं, ठीक है। अब इस न्यू कीवर्ड की देखो यहाँ पर ज़रूरत क्या होती है, व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस न्यू कीवर्ड। देखो हमने पढ़ा कि न्यू कीवर्ड एलोकेट्स द मेमोरी। अब हमारी पहले भी तो मेमोरी एलोकेट होती थी, अगर हम कोई भी आपका वेरिएबल लेते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, हम यहाँ पर तो कोई मेमोरी एलोकेशन न्यू वगैरह नहीं करते थे, यहाँ पर हम आपकी ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपकी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होगी। जैसे आपका सी लैंग्वेज के अंदर मैलॉक फंक्शन हुआ करता था इन द सी लैंग्वेज टू एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली, अब यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, अब ये जब आपने लाइन लिखी तो इसके अंदर ये देखेगा कि कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। अब कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, आपका जो इंटीजर होता है वो कितने बाइट्स का होता है, वो होता है आपका 4 बाइट्स का, आपका एक इंटीजर होता है। और आपको यहाँ पर कितने इंटीजर सेव करने हैं, हमारे को यहाँ पर अप टू 40 इंटीजर्स हमारे को सेव करने हैं। तो कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 द 16, तो 160 बाइट्स की हमारी मेमोरी एलोकेट कर देगा। कौन एलोकेट कर देगा, दिस न्यू कीवर्ड विल एलोकेट द मेमोरी ऑफ 160 बाइट्स, तभी तो हमारे 40 इंटीजर्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब हमारी को हम इस सिंटेक्स को चाहें तो एक लाइन के अंदर भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इंटीजर टेम्प, और यहाँ पर ये डिनोट करने के लिए दिस इज एन एरे है, और ये क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और ये 40। हम इसको चाहे तो एक लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर 2 लाइनों में अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपकी हो गई फर्स्ट लाइन और ये आपकी हो गई सेकेंड लाइन। तो ऑप्शन आपके पास है, मेरे ख्याल में ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सिंपल है, आप इसी को यूज़ करें जब भी आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली अब 40 वेरिएबल्स तक हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर इसको मैं आपको पिक्टोरियली एक बार और रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एरे की हमने यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले ली, और इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि सपोज आपने ये यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया। किस तरह से डिक्लेयर किया, इस एरे को हम मान लेते हैं कि ये एरे आपका टेम्प नाम का एरे है। आपने टेम्प नाम का कोई एरे डिक्लेयर किया और इसका जो साइज़ है ना वो आपका साइज़ 10 है, ठीक है। हमने तो ऊपर यहाँ पर लिया हुआ है 40, लेकिन इस पिक्चर के अंदर हमने एरे 10 साइज़ का डिक्लेयर किया हुआ है। आप ये देखिए ये ब्लॉक्स बन गए, ये सारे के सारे ब्लॉक्स कितने कितने बाइट्स के, 4 बाइट्स के। 4 बाइट्स का एक ब्लॉक बन गया, 4 बाइट्स का दूसरा, 4 बाइट्स का तीसरा। और जो इसकी मेमोरी लोकेशन होती है ना वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होती है। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन का देखो मतलब क्या होता है, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन का ये मतलब होता है कि आपकी हर मेमोरी का एड्रेस होता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये एरे यहाँ पर क्रिएट किया, तो सपोज इसको मेमोरी लोकेशन मिली 100, इसको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है 100। अब इंटीजर होता है 4 बाइट का, तो अब अगला जो मेमोरी लोकेशन होगी ना उसका एड्रेस क्या होगा 104, क्योंकि 4 बाइट 100 प्लस 4 बाइट 104। और जो तीसरा एलिमेंट है इसकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कितना होगा 108, क्योंकि 104 प्लस 108 इज इक्वल टू 104 प्लस 4 इज इक्वल टू 108 एंड 108 प्लस 4 इज इक्वल टू 112। तो इस तरह से जो आपकी मेमोरी लोकेशन होती है ना एरेज के अंदर वो आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और होता है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि आपने कि अब आप इसके अंदर किसी भी वैल्यू को सेव करा सकते हैं।
जैसे आपने यहाँ पर टेम्परेचर 23 यहाँ पर सेव करा दिया, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन, फिर 27 हो गया, फिर आपका टेम्परेचर 29 हो गया, फिर 32 हो गया। इस तरह से आप ये सारे टेम्परेचर्स यहाँ पर सेव करा देंगे, ठीक है। अब जैसे है ना हम नंबरिंग करते हैं कि ये पहली मेमोरी लोकेशन है, ये दूसरी मेमोरी लोकेशन है, ये तीसरी मेमोरी लोकेशन है, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। बस एरे के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हमारी नंबरिंग यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होती। द नंबरिंग विद इन द एरे स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडेक्स 0। ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, मतलब 0 नंबर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नंबरिंग हमारी 1 से स्टार्ट नहीं होती, नंबरिंग हमारी किससे स्टार्ट होती है, नंबरिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। अब आपका जो है ना टोटल साइज़ कितना है, आपका साइज़ है 10 एलिमेंट्स है, तो नंबरिंग आपकी 0 से स्टार्ट हुई। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप 0 से 9 तक चलोगे, क्योंकि ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यूज़ हो गई। तो हम है ना इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं इंडेक्स। नंबरिंग को हम यहाँ क्या बोलते हैं, इंडेक्स के, इंडेक्स ऑफ द वैल्यू एरे। तो यहाँ पर आपका जो भी पहली वैल्यू होगी वो कौन से इंडेक्स के ऊपर सेव होगी, जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर सेव होगी, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, तीसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, फिर थर्ड के ऊपर, फिर फोर्थ के ऊपर, फिर फिफ्थ के ऊपर। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज़ है ना, एक पहली वैल्यू इंडेक्स 0 पे, अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर आपकी वैल्यू यहाँ पर सेव हो जाएंगी। देखो इंडेक्स का फ़ायदा क्या है, अब है ना यहाँ पर सपोज हमें 32 के बाद हमने वैल्यू सेव करा दी 34। अब क्योंकि आपका वेरिएबल तो एक है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मेरे पास आई एम हैविंग ओनली 1 वेरिएबल एंड आई वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। You want to get this particular value. Which value? The value which is saved at index number 4. You want to get this particular value. तो बहुत सिंपल है, हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमने कहा टेम्प, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जिस इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना है, जो आपको वैल्यू यहाँ पर गेट करनी है, आप उसका यहाँ पर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करा देते हैं कि वी आर टॉकिंग about the value which is at index 4. We are talking about the value which is at index 4. अब आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न कर देगा 34। या फिर आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को, कौन से सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को 29 को चेंज करके कितना करना चाहते हैं, 28। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे कि टेम्प वैल्यू, in this particular array or in this particular variable, the value which is at index number 2, I want to change this value from 29 to 30। तो आप यहाँ पर सिंपल 30 कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ये 29 हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिंपल 30 आ जाएगा। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसका एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं कि हम एरे को अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एम्प्टी फोल्डर है JPR, हम इसके अंदर VS कोड को ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लिया। और VS कोड को ओपन करने के बाद हम इस JPR फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना देते हैं। हम फाइल का नाम रखते हैं a.java। ओके, हमने यहाँ पर फाइल बना दी। फिर हम यहाँ पर क्लास बना देते हैं ए नाम की। हमने ए नाम की क्लास बनाई और इसके अंदर हमने क्या किया, मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया। हमने कहा मेन, ये हमारा मेन मेथड हो गया। फिर हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया टेम्प नाम का, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बताते हैं कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल बट दिस इज़ एन एरे। और हमने यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड यूज़ कर लिया, क्यों, मेमोरी एलोकेशन के लिए। फिर हमने इंटीजर लिया। अभी हम इसका साइज़ छोटा ही रखते हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पर डेमो देना है इसका, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ये एरे क्रिएट कर लिया। अब हमारे को इसके 5 वैल्यूज़ को हमारे को इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीजर नहीं, यहाँ पर टेम्प के 0 इंडेक्स के अंदर, 0 मतलब अब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या स्पेसिफाई करेंगे, 0 के अंदर आप कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर दो, 20 वैल्यू इंसर्ट कर दो। इसी तरह से टेम्प के अंदर, किसके इंडेक्स के अंदर, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आप क्या वैल्यू इंसर्ट कर दो, आप 30 वैल्यू, आप 21 वैल्यू इंसर्ट कर दो। हमने यहाँ पर 21 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया एंड सो ऑन। टेम्प एट द सेकेंड इंडेक्स वैल्यू दिस सेव 23। ओके, नाउ इन दिस टेम्प एट द थर्ड इंडेक्स save the value, suppose यहाँ पर 28।
Now in the array temp on the fourth index save the value, which value, save the value 29। तो हमने यहाँ पर ये 5 वैल्यूज को सेव करा दिया। अब क्योंकि देखो 5 वैल्यूज हैं तो पहला इंडेक्स 0 होगा, तो लास्ट इंडेक्स हमेशा साइज ऑफ द एरे से -1 होगा, मतलब 4 ही होगा। देखो ना, आप टोटल 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज हो गई। अब आप किसी भी वैल्यू को चाहो तो गेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर कहा एस आउट और हमने यहाँ पर गेट कर ली कौन सी वैल्यू, सपोज सेकंड इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है, हमने यहाँ पर टेम्प वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया कि भाई 2, हमारे को 2 की वैल्यू चाहिए। हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 23। आउटपुट में देखो आपको क्या आ गया, यहाँ पर 23 आ गया। अब आप इस चाहो तो इस वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हो। हमने कहा कि भाई वैल्यू 2, हमारे को 23 नहीं चाहिए, हमारे को 23 की जगह क्या चाहिए, 25 चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसा आउट करके इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। कौन से वैल्यू को, जो आपके इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है। हमने इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को चेंज करा के यहाँ पर प्रिंट कराया। तो यहाँ पर देखो पहले आपको वैल्यू मिली 23 क्योंकि 23 आपने यहाँ डिक्लेयर की हुई थी। फिर आपने इस वैल्यू को चेंज कर दिया और चेंज करके अब आपने वैल्यू नहीं साइन की 25। सो हेयर यू विल गेट द वैल्यू 25। ओके, नाउ देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे। प्रॉपर्टी एरे की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे, उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारी रेफरेंस टाइप डाटा टाइप्स होती है ना, एरे इज़ अ रेफरेंस टाइप डाटा टाइप। हम उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि रेफरेंस टाइप डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं। लेकिन अभी आप सिंपल ये लॉजिक समझ लीजिए कि जो डाटा टाइप्स को हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके क्रिएट करते हैं वो डाटा टाइप्स क्या होती हैं, रेफरेंस टाइप डाटा टाइप्स। तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स का मतलब जैसे मेथड्स या फंक्शंस, ठीक है ना। सी लैंग्वेज के अंदर हम उन्हें फंक्शंस बोलते हैं, जावा के अंदर हम उन्हें मेथड्स बोलते हैं। तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ वेरिएबल्स। तो इस एरे क्लास के अंदर जो एरे आपका डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। किस नाम की प्रॉपर्टी होती है, लेंथ, जो आपको रिटर्न करती है लेंथ ऑफ द एरे, जो आपको ये बताएगी कि एरे की लेंथ क्या है। तो अब अगर सपोज हम इस एरे की लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द साइज, लेंथ मतलब व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एरे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कई बार हमारे को ज़रूरत पड़ती है भाई लेंथ जानने की। तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ को यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो एरे का नाम क्या है यहाँ पर, टेम्प इज़ द नेम ऑफ द एरे। और हम डॉट, जब भी हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं ना, हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो हमने लिख दिया टेम्प डॉट लेंथ, ठीक है। प्रॉपर्टी को जब भी यूज़ करते हैं, वी यूज़ द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। अभी आप पूरी जावा सीखने वाले हो, ये सब बहुत ही छोटी चीज़ें आपको आगे चल के धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आउटपुट हम क्या गेस कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं यहाँ पर 5, क्योंकि साइज ऑफ द एरे क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। ये आपके कमेंट स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो हम ये देखते हैं ये लेंथ ऑफ द एरे कितना दिखा रहा है, लेंथ ऑफ द एरे यहाँ पर इसने 5 को दिखा दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके है ना सारे के सारे जितने भी एरेज हैं ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, दे आर इनिशियलाइज टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम ले लेते हैं छोटा सा b.java और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि क्या एरे वास्तव में अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो रहा है। जैसे सी और C++ लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, वो गार्बेज वैल्यू ले लेते हैं। तो हम कोई एक्स टाइप का एरे बना लेते हैं और एक्स टाइप के एरे के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 4, कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी सारे के सारे एरे को। देखो जब हमने एरे को इनिशियलाइज़ किया, हमने एरे को यहाँ पर इस तरह से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं कि इंटीजर एक्स, ये हमने एरे बनाया इज इक्वल टू न्यू इंट और हमने यहाँ पर लिखा 4। तो आपका मेमोरी लोकेशन के अंदर एक एरे बन जाएगा इस तरह से। कितने एलिमेंट का बनेगा, 4 एलिमेंट्स का बनेगा। पहला इंडेक्स क्या होगा, 0 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 3, 0 1 और फिर होगा 3। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4, क्योंकि साइज -1 इज इक्वल टू द लास्ट इंडेक्स, क्योंकि पहला इंडेक्स 0 है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो क्या करता है 0 0, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0, तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अब देखो इसको है ना समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अच्छा तो समझ में तब आएगा जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद मैं फॉर लूप्स के थ्रू आपको एरे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हम जो इंडेक्स 0 के ऊपर है हम उसको प्रिंट करते हैं। फिर हम यहाँ पर है ना एक बार क्या करते हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को, जो 4 की 4 वैल्यूज़ हैं, हम चारों वैल्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं। देखो हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हम केवल प्रिंट कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को।
तो हमने यहाँ पर लिखा 3। अब हम देखते हैं कि यार डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो गया आपका एरे। आपका एरे देखो सारे में आपकी क्या वैल्यूज़ आ गई, सारे में आपकी 0 0 वैल्यूज़ आ गई। तो ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं लेता, ये क्या करता है, सारी की सारी वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। अब देखो बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। तो हम एक बुलियन टाइप का एरे बनाते हैं। तो आप क्या ना किसी भी प्रिमिटिव का डाटा टाइप का एरे बना सकते हो, और बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, फॉल्स। तो अब ये देखो, अब ये सारे एरे को फॉल्स से इनिशियलाइज कर देगा। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो आउटपुट में क्या आ गया आपका, फॉल्स। तो मतलब एरे गार्बेज वैल्यू नहीं लेता है। तो अगर आपको ये पता है कि आपको एरे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप इसका ये जो आपने यहाँ पर साइज स्पेसिफाई कर दिया, आपने यहाँ साइज स्पेसिफाई कर दिया 4। अब इसको आप फ्यूचर में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आप के आगे 5-7 वैल्यू और आएंगी, 8-10 वैल्यू और आ सकती हैं, तो आप इसका साइज 15 लेकर के इनिशियलाइज कर दो। उससे क्या होगा, आपने 4 वैल्यूज़ तो इंसर्ट कर दी, ठीक है, मैंने 4 वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अब देखो यहाँ पर डेमो के लिए हम क्या करते हैं, इस एरे का इंडेक्स 15 का है, 15 एलिमेंट, तो लास्ट इंडेक्स होगा इसका 14। आपने क्या करा यहाँ पर, आपने इसमें 4 वैल्यूज़ तो आपने इंसर्ट कर दी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। आपने यहाँ एंटर कर दिया 10, यहाँ आपने 12 कर दिया, यहाँ 16 कर दिया, सपोज यहाँ पर 18 कर दिया। तो आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने 4 इंडेक्स को यूज़ किया है, बाकी सब में क्या इंसर्ट कर देगा, 0 0 0 0 ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई इसके अंदर बतानी, कि इसके अंदर है ना बाउंड चेकिंग होती है। बाउंड चेकिंग का मतलब क्या होता है कि ये बाउंड देखता है कि अपर बाउंड क्या है इसका, अपर बाउंड क्या है इसका 4। तो मतलब लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा, 3 ही होगा। अगर आप इसके 4th इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करो तो ये आपको रन टाइम एरर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि 4th इंडेक्स तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लास्ट इंडेक्स क्या होगा इसका, लास्ट इंडेक्स तो आपका क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। देयरफॉर इट विल जनरेट एन एरर व्हेन यू ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स डू नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर हर एरे का नाम भी होता है। यहाँ पर जो एरे जनरेट करेगा ना, वो एरे जनरेट करेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर, आउट ऑफ बाउंड्स एरर, ये वो एरर जनरेट कर देगा। ये सारी एरे की क्लासेस हम पढ़ेंगे, हम इनको चाहें तो हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं उन डिटेल्स में नहीं जाने जा रहा, आगे वाले वीडियोस में सब क्लियर हो जाएगा। तो इस वाली लाइन में आपको एरर जनरेट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने 4 बार ये फॉल्स प्रिंट किया, 4 बार फॉल्स, तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन। और इस वाली लाइन के ऊपर इसने एरर जनरेट कर दी। ये देखो, ये आपका एरर मैसेज है। और एरे और आपकी एरर कौन सी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और बता भी रहा है इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4, क्योंकि आपके एरे की लेंथ 4 है, इसलिए जो है आपका ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लास्ट इंडेक्स आपका क्या होना चाहिए, लास्ट इंडेक्स आपका यहाँ पर 3 ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर फॉर लूप्स करेंगे, क्योंकि आपको एरे को एफिशिएंटली यूज़ करना है ना, तो आपको फॉर लूप्स आने चाहिए। फॉर लूप्स के अंदर फिर हम एरेज के और प्रोग्राम बना करके देखेंगे, और हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी देखेंगे। जैसे सॉर्टिंग मतलब आपको एक गिवन एरे, आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम एल्गोरिथम एक देखेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, अपने अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।